हेलो निधि, कैसी हो? Hello, very well. कैसी थी दिवाली? Amazing, amazing. I wore the Rajasthani पोशाक I got for myself वहां से हम तो बोलकर ही लाए थे कि हम पहनेंगे जोधपुर से जो खरीद के लाए थे. So I wore that pink and blue color का. बहुत कुछ बना था घर में. लाइट्स, दिया, होल डे ऑफ फेयर. नेक्स्ट डे भी बिकॉज आस पड़ोस के लोगों के घर गए थे. कुछ कुछ घर आए थे लोग. तो फन. Oh, nice, Hey, no, interesting. you tell me, how was yours? Mine did not feel like a festival this time because for most of the part मैं काम ही कर रहा था ऑफिस का। और आई डोंट थिंक कुछ इतना अलग किया मैंने इस बार ये। लाइक एक आध दिन पटाखे फोड़े और ate some food and that was it. Was not like Diwali like we usually celebrate where no you take that time off, Hmm. uh, meet family, friends. वो Hmm. सब आई थिंक मेरे लिए नहीं रहा वो अभी। दैट्स Hey, don't दैट say माइंड से। that. Heartbreaking. हाँ, Shut even up. Hmm. yeah, but kind of the roles and responsibilities at work have kind of taken over now and but I don't think ऐसा हमेशा रहेगा पर कहीं ना कहीं वो मेरा स्केड्यूल ऐसा बन गया है कि फेस्टिवल डिड नॉट फील लाइक अ फेस्टिवल बट I'll stop at that. I don't want to sound like a broken record. Hey, वो तो हमने. No, no, but the point is, like, why? I mean, दिवाली में लीव नहीं था. Didn't you take holiday? Like, that was. I mean, I was not forced to not take a leave or anything. It was more of a personal choice because of commitments that I Hmm. uh, personally was not able to fulfill at work. It was Hmm. nobody forcing me to do it. Hmm. So that was the main reason. मुझे ऐसा था कि मुझे ये टाइम पे ये काम खत्म कर लेना है। तो दिवाली वीक फेल्ट लाइक एन ओवरवेलमिंग थिंग फॉर मी टू कि छुट्टी ले लूं और फिर मुझे ये रहता कहीं ना कहीं दिमाग में कि अरे दैट छुट्टी भी मैं अच्छे से एंजॉय ना कर पाता शायद। बट इट इज प्रोबेबली मी। मैं ऐसे टाइप का हूँ कि अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो मेरे दिमाग में वो चलता रहता है, रिंग करता रहता है कि ये बाकी है बाकी है, मुझे सपने में आता है काम। तो दैट इज द रीजन आई जस्ट फेल्ट लाइक लेट मी जस्ट फिनिश इट। ऐसे भी छुट्टी लेके मैं क्या ही कर लेता तो। I think you have internalized the whole corporate. But first of all, किसी को नहीं पता है what you do. So first, introduce yourself. What do you do? ओह या श्योर, सो आई Basic एम अ terms डेटा में. इंजीनियर। Hmm. हाँ, मैं एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, specializing in data engineering. So my work involves building, I would say applications or code around, getting the right data into the right format for companies to basically report and ensure like everything is, accurate, do experimentations on data and n number of applications for basically utilizing the data. तो मेरा काम है कि उस डेटा को टाइमली एक्यूरेट, यू नो कम से कम लेटेंसी में उस डेटा को अवेलेबल रखना सब स्टेक Hmm. होल्डर्स के लिए, विच इंक्लूड्स कस्टमर्स एज वेल। तो आई एम करंटली वर्किंग विथ HSBC and yeah, basically we have so much of workflows to, build, which is Hmm. I think almost every bank has a lot of deliverables क्योंकि उनके compliances related बहुत सारी चीजें होती है और Hmm. उनके internal processes भी बहुत होते हैं, which because of which normal workload at a bank is comparatively more than any other company. When you first told me you were going to join a bank, I thought SBI and you will have long, long lunches. एक घंटे That's a good one. I don't think that happens for most of the folks मैंने देखा है HSBC में, which is very very unlike other all other organizations I've seen। HSBC में लोग literally
15 से 20 मिनट में लंच करके वापस आ जाता है डेस्क पे. एंड आई थिंक दैट इज ओनली बिकॉज डेस्क पे Very लंच nice. करना अलाउड है. आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ गोल्डमैन सैक्स में लोग डेस्क पे बैठ के खाना खाते हैं. उनको इतना काम होता है कि they literally don't go anywhere from the desk. Chained to the desk is a better Ah, analogy. maybe there are more appropriate term here. I hope nobody faces that kind of scenario. But the point is, I have a question. You take, Acha, how many years have you been working? Like, I never really asked any of these questions. How many hours? Years. Years. Oh, I have been working for around 11 years now. Um, I have worked with many companies, and within these 11 years, I've always worked on data, and I've seen whichever team I've joined, these data teams are usually always uh, overloaded with work. क्योंकि उनका ये होता है कि डेटा रिलेटेड वर्क हमेशा ये होता है कि इनको इधर माइग्रेशन करना होता है डेटा को फ्रॉम सम ओल्ड सिस्टम टू अ न्यूअर सिस्टम. तो ये माइग्रेशन की है ना, यूजुअली रीजंस कुड बी मल्टीपल, बट प्राइमरी रीजंस इनके ये होते हैं कि इधर इनका कोई पुराना सॉफ्टवेयर है, उस वो भी लाइसेंस नहीं रहेगा, या फिर अगर वो कोई पुराने चीज पे काम कर रहे हो, रेगुलेटरी कंप्लायंस पे नहीं है, तो उनको फाइन्स लगने वाली होती है बहुत बार. या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि दे वांट टू माइग्रेट टू अ मोर एफिशिएंट सिस्टम. तो ये सब में लॉट ऑफ मनी इज ऑलवेज इन्वॉल्व, एंड इसी वजह से द डेडलाइंस आर ऑलवेज वेरी टाइट, एंड यू हैव टू एंश्योर योर वर्क ऑल्सो इज अप टू द मार्क. आप अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहाँ पे आप इटरेटिवली कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर करके चीजें, डेटा रिलेटेड चीजें आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि डेटा में एक्यूरेसी और उसके साथ साथ कंप्लीटनेस Hmm. और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है जिसके साथ यू कैन नॉट प्ले अराउंड. आपके कस्टमर का डेटा आप गलत नहीं कर दे सकते, फिर डुप्लीकेशन नहीं आ सकता उसमें. वो उड़ गया तो अलग प्रॉब्लम्स को रिकवर करना मुश्किल होता है. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट अगेन वो बहुत टेक्निकल चीजें हो जाती है, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट. बट वही है. और डेटा को मतलब आप वर्कफ्लोज को रन करने में भी बहुत टाइम लगता है, और उसके लिए बहुत पैसा भी खर्च होता है कंपनीज का. तो इट्स ऑलवेज ऑलवेज वेरी high expectations and very Yeah. technically intense work. Very fast paced also. Because if you are saying that Very data fast needs paced. Yes. Yes, yes. updating, refreshing, and what do you do? Tracker updates. Yeah, Mhm. I update trackers all the time. Yeah. Yeah, yeah. Brilliant. And one another thing which you keep telling me is you do prods. I remember when you did your first prod, I'm like, congratulations on your first prod, and you're like, ऐसे बहुत कर रहे होंगे. So, what is prod? Okay. Quickly बोलिए. So या श्योर. सो बेसिकली क्या होता है ना कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में होता है. एक तो होता है आपकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप डेवलपमेंट करते हो और चेक करते हो कि आपका कोड चल रहा है, सही चल रहा है, उसमें सारी फंक्शनलिटीज अचीव हो रही है, नहीं हो रही है, राइट. कौन से कंपोनेंट्स आपको बिल्ड करने हैं वो सब डेव में आप कर लेते हो. फिर होता है यूजर एक्सेप्टेंस एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड यूएटी, या फिर टेस्ट एनवायरनमेंट, जहाँ पे यूजर्स जो होते हैं, जो भी कंज्यूमर स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं, वो चेक करते हैं कि एक्चुअल जो प्रोडक्शन लाइक डेटा है वो अ, मतलब जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे वर्क कर रहे हैं या नहीं, सारे सिनेरियोस कवर्ड है या नहीं. अगर वहां पे Hmm. चल गया तो इट गोज टू प्रोडक्शन, विच इज लाइक अ लाइव एनवायरनमेंट जो यूजर फेसिंग होता है. Hmm. So, and again, production is not always user facing, but it's more like it is with all the, मतलब जो actual इस particular Real चीज की time. जहाँ पे जरूरत होती है production real time could also may not हाँ. be Hmm. always Hmm. Hmm. accurate, I get it. I but get yeah, you get the gist, right? Yeah. it. Wow. Hence a very hectic Diwali. All right. So, wait, but if you're working so hard, and I'm sure so many other people are working hard, so what do you feel when you hear, आज जैसे Amazon has announced कि they are going to lay off 30,000, 30,000 jobs जाने वाले हैं. It's so Saddest scary. thing. I mean, Yeah.
And I was just reading a report by Reuters and Economist. पता ही है, Economist is very reputable journalism, economic journalism. So it quotes the CEO and DJC जो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को रिड्यूस करना है और एआई में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है. And and weirdly enough, they are reducing people in the technically proficient zones. I have heard AWS only from you, but अब दिख रहे हैं कि Amazon Web Services से वो लोग lay off कर रहे हैं, and in many such positions, and it's starting October 28th. Mane, it's really scary. To be honest, Why? What do you think? I can understand from a tech perspective कि how certain jobs could be technically, it could be a debt to the organization कि जो चीजें आप ऑटोमेशन से अचीव कर सकते हो, जैसे कि कोई एचआर का जॉब, राइट? अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी है जहाँ पे पीपल आर अप्लाइंग, आपका सॉफ्टवेयर उसको स्कैन कर लेता है कि कौन सा रेज्यूमे इज मोर रेलिवेंट और कौन सा कैंडिडेट इज मोर रेलिवेंट. ऑल्दो ह्यूमन इंटरवेंशन लग सकता है, बट नॉट एवरी एचआर इज अप टू द मार्क इन ऑल द एरियाज, राइट? क्योंकि चीजें चेंज होती रहती है. आई एम नॉट सेइंग एचआर आर नॉट स्मार्ट, आई एम सेइंग कि उनको वो शायद रिलेवेंट ना भी हो. सिस्टम ऑन द अदर हैंड कुड बी. अगर मैं सिस्टम को बता दूंगा कि मुझे ये चीजें चाहिए, सिस्टम वुड बी मोर एफिशिएंट. अगेन एचआर इज अ वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल, बट ऑपरेशंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो ऑटोमेट हो सकती है. तो अगेन गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ एचआर, तो अगर मुझे स्कैन करके शॉर्टलिस्ट आ रहा है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस, और उस पे अगर मैं इनिशियल राउंड्स अगर मैं एआई से करके उनको एक्चुअल इंटरव्यूइंग प्रोसेस और एक हायरिंग मैनेजर थ्रू अगर मैं किसी को शॉर्टलिस्ट करके हायर करने की स्टेज तक लेकर आता हूँ, तो ऑफर रिलीज करने में आई थिंक वेरी वेरी मिनिमल थिंग्स आर लेफ्ट टू एचआर पर्सनल. अगर मैं लीगल सिस्टम्स जो भी चीजें होती है मोस्टली अगर मैं उनको ऑटोमेट करके रख दूं, तो आई थिंक जो 10 लोग काम कर रहे थे इट कुड बी रिड्यूस टू आई थिंक 2 or 3 people ओनली. So I can understand from a tech perspective ki how this could be more efficient and could save a lot of dollars to the company. But again, it could also backfire in ways you may not have seen so far. क्योंकि इतने सारे लोगों को अगर तुम ले ऑफ कर रहे हो, तो देर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने मतलब ऑलरेडी मतलब माइग्रेट कर दी है ऑन टू द सिस्टम ओनली. तो आई डोंट नो, बट कंपनी लाइक Amazon इज नो नो लाइक वो कोई नए लोग नहीं है. उन लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें पहले ही कर ली होंगी, उनको टेस्ट कर लिया होगा और उसके बाद ये डिसीजन लिया होगा कि दे आर लेइंग ऑफ पीपल. अगेन नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ इट, बट आई डू अंडरस्टैंड हाउ और वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. एंड आई होप दिस डज नॉट, मतलब ये हो ही जाता है कि बाकी कंपनीज एक ने किया तो सब फिर उसी इस पे उतर आते हैं. आई होप दिस इज इंटरनल टू Amazon and not everybody replicates it like that quickly. But you never So know. I'm Yeah, going this to is give the you an age. example. I just read a report once again. This was from Economist. वो कह रहे हैं कि as of October 27th, 8th, we have just read Amazon is laying off. Meta did it, 600 of them from Meta Super Intelligence Labs. Google also recently, and one of my acquaintances, he just got fired. Microsoft 4,000 recently lay off कर रहे हैं. TCS announced 6,000 across the world. Salesforce 4,000, Accenture 11,000, IBM 1,000, Cognizant 35,000, Cognizant laid off 33,000 people. 35, Wipro 24,000, and Intel 529 only up to this year. And across the world, तो बोल ही नहीं रहे. I mean, there are certain people from across the world, but I'm not even talking about other companies across the world, tech companies. This is just a snapshot. So what do you think? That is, I think हर एक का रीजनिंग तो सेम नहीं होगा. हाँ, लोग आजकल बहुत सारी चीजों को बस एआई के नाम पे चला रहे हैं. बहुत सारे ले ऑफ्स तो उसी चीज पे चल रहे हैं. But I think मतलब companies like Cognizant, TCS, Wipro, if they are firing, I think हम्म उनके reasonings ये होंगे कि some people are not trainable on certain technologies.
तो हम्म। बिकम डेटफुल लाइक इन दैट हम्म। एरिया कि मैं इसको रख के क्या करूंगा, राइट? तो आई थिंक दोज कुड बी देयर रीजनिंग्स। बट मुझे लगता है मेजर मेजर चीज ये होती है कि अगर एआई में जा रही है चीजें, हम्म। अगर लेट्स सपोज कॉग्निजेंट मेरा वेंडर है और मेरी कंपनी ऑलरेडी एआई पे काफी चीजें शिफ्ट कर चुकी है, तो आई मे नॉट नीड कॉग्निजेंट के इतने सारे लोग ऑन माय सिस्टम, हम्म। राइट? तो आई वुड प्रोबेबली हायर सम efficient engineers हम्म। to do job of like 100 vendors, and would probably cut costs on the vendor outsourcing, right? And then it goes back to Cognizant to make that call कि अच्छा मेरे क्लाइंट के पास इनके लिए रोल नहीं है, तो मैं इनको रख के क्या करूंगा? दिस इज फ्रॉम द कंसल्टिंग स्टैंड पॉइंट। प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट से अगर बोलूंगा तो फिर वही है कि आजकल एक इंजीनियर से एक्सपेक्टेशन होती है कि दे शुड नो लाइक द जॉब लाइक रियली रियली वेल। जो चीजें पहले मॉड्यूलराइज होती थी कि एक टेस्टिंग टीम होती है, दूसरी डेवऑप्स टीम होती है, तीसरी डेटा टीम होती है, चौथी कोई और लेगेसी टीम होती है, वो सारा काम अब एक इंजीनियर वो सब चीज का उसको पता होता है। तो अभी इट्स मोर अबाउट hiring efficient engineers than hiring 4 different people to the same job. That's why अभी पे स्केल भी उनका बढ़ गया है। बट ऑब्वियसली लाइक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई जॉब कट्स हो रहे हैं कि लोगों को होता है कि अभी बहुत सारी चीजें अगर मेरे पास I have a co-pilot, literally a co-pilot, which codes with me. It tells me how the system works. So I should not need so many people to help me out. And that internally implies कि हम लोगों ने AI का लाइसेंस ले लिया है, तो इतने जॉब्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज फ्रॉम द प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट। तो इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट कटिंग और हर जगह वही हो रहा है। बट द नंबर्स आर शॉकिंग, लाइक इतने जल्दी इतने ज्यादा लोग अगर ले ऑफ हो रहे हैं, तो आई थिंक ये अगेन मेरा पर्सपेक्टिव है। आई थिंक इट मे बैकफायर। Yeah. ये कंपनीज को फिर से लोगों को लाना पड़ सकता है, नॉट टू दिस स्केल, बट कहीं ना कहीं उनको लाना पड़ सकता But I'm wondering if this expectation that one engineer will be super efficient and he'll know everything from all aspects, does it not put a lot of pressure on the existing engineers as well? It's like है। learn or you perish. So it's like everybody is running that race and everybody has a sword right next to their throat and कभी भी उनका मतलब they'll be beheaded. So That's how the market is right now. Abhi companies are paying, like I've heard banks here in Pune paying what 25 lakhs to a fresher. जो हमारे टाइम पे फ्रेशर की एवरेज सैलरी होती थी आई थिंक कुछ 4 या 5 लाख रुपए, तो वहां से हम लोग अगर 5 टाइम्स ज्यादा दे रहे हैं, दैट hmm, क्लियरली इम्प्लाइज कि हम लोग एक्सपेक्टेशंस भी 5 टाइम्स ज्यादा कर रहे हैं। हमारे टाइम पे ट्रेनिंग्स होती थी, अभी आई डोंट थिंक उनको ट्रेनिंग मिलती है, दे डायरेक्टली गेट एक्सपोज्ड एंड दे आर सुपर स्मार्ट इज वेल बिकॉज उनको वो सब चीजें कहीं ना कहीं उनको आ रही होती है, राइट? तो एक्सपेक्टेशन है, उसके साथ साथ उनका कट थ्रोट कंपटीशन भी चल रहा है, वो वैसा टैलेंट भी उतना प्योर स्मार्ट टैलेंट हायर हो रहा है, बट इट इज डेफिनेटली टेकिंग अ हिट टू द रेगुलर एवरेज इंजीनियर। but tell me something, if we are hiring these super efficient people who are then training these machines, effectively making their own job redundant, then abhi nahi maybe 5 years, because Zuckerberg recently said that the coding के लिए भी they will not require engineers. So effectively like 5 7 years, then what will people do then? सी एक चीज जाती है तो दूसरी आ जाती है, दैट इज फॉर श्योर। बट Zuckerberg saying this could also come from the investment perspective। अभी क्या हो रहा है ना कि a lot of people feel, including me, कि AI जितना बनाया जा रहा है लोगों के दिमाग में उतना बड़ा है नहीं। मतलब एआई खुद से कोड लिख लेगा और कोड कर देगा और सब कुछ हो जाएगा एंड टू एंड, ऐसा नहीं है पॉसिबल। वहां तक हम लोग पहुंचे नहीं है। कोडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। आप एप्लीकेशन बनाने की बात करोगे वो बना देगा,
लेकिन वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी सिक्योर्ड है, उसमें क्या बग्स है, ये सब चेक करने के लिए कोई होना चाहिए। और आप अगर 20,000 लाइन का एक प्रोग्राम लिख दोगे, उसमें कहीं ना कहीं उसको ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं दिमाग लगाने की, क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, राइट? तो जकरबर्ग अगर बोल रहा है तो वो बोल रहा है कि इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कि यही है फ्यूचर, इसमें इन्वेस्ट करो, राइट? बट रिडंडेंसी आएगी या नहीं आएगी, वो इतने जल्दी आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। इट इज क्लियरली अ बबल। एंड बहुत सारी चीजें, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क अगर करनी है तो उसके लिए ह्यूमन इंजीनियर्स लगेंगे। बट अगेन, एज द करंट जो भी पैराडाइम बन गया है इंजीनियर्स का, कि उनको भी उसके साथ ही साथ एफिशिएंट होना पड़ेगा। दिस इज द हार्श ट्रूथ ऑफ दिस, कि वो ऐसे कर नहीं सकते कि एआई आ गया है तो हमारी जॉब चली जाएगी। पर वो ऐसा भी नहीं सोच सकते कि हाँ मतलब मेरी जॉब कहीं नहीं जा रही। दे हैव टू ऑल्सो अपकीप विद द करंट सिचुएशन। Everybody I know, including you, are working long, long hours. And then we talk about, मतलब my friend who's in HR, poor thing, PwC में, she's working from 10 to 12 बजे रात में, 10 दैट्स hours seriously. दैट्स But what is दैट्स the व्हाट need for this space? No, but what is the need for this space for companies? क्या है ना कि एज आई सेड अर्लियर, सॉरी समथिंग गॉट मी डिस्ट्रैक्टेड। हम्म क्या है ना कि इफ यू लुक एट लार्ज कॉर्पोरेशंस, दे आर ऑल अबाउट स्केलिंग, राइट? वो हम्म अगर पुराने जमाने में चले जाओ, तो पहले अगर साड़ी मैन्युफैक्चर होने में अगर टाइम लगता है, कोई हाथ से बना रहा है, तो शायद उसको 10 घंटे लग जाए, 15 घंटे लग जाए। लेकिन मुझे नहीं पता कितने घंटे लगते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। पर अगर कोई मशीन आ जाती है, ह्यूमन ऑपरेटेड मशीन, तो शायद वो 10 मिनट में बना ले। और जहाँ पे एक आदमी बेचारा एक इस पे काम करने के लिए कुछ टाइमलाइन कमिट करता था कि मुझे 2 दिन लगेंगे, तो अभी 10 मिनट में बन रहा है। तो ऑब्वियसली जो मशीन ओन करता है वो तो यही बोलेगा 10 मिनट में साड़ी बन रही है, 100 साड़ियां बना दो दिन में और बेचो, राइट? तो ये पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो, अगर ऑटोमेशन आता है ना, तो हमेशा काम बढ़ता है थिंकिंग इफिशिएंसी, कि अभी इतना काम इतने टाइम में हो सकता है। तो और फिर स्केलेबिलिटी आ जाती है कि इतने ज्यादा लोगों को केटर हो सकता है। तो इट इज अ रिवर्स पैराडाइम एक्चुअली, कि लोगों को जहां पे लगता है कि इससे मेरा काम कम हो जाएगा, उससे एक्चुअली उनका काम और ज्यादा बढ़ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। नॉट इन हम्म टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में भी, हम्म बट हम्म उनका काम कि यही चीज 100 चीजों के लिए हमें करनी है, राइट? तो हम्म. वो हो जाता है। But then एंड what about दैट people दैट who, इज अ रिपल इफेक्ट ऑफ स्केलिंग एक्चुअली। yeah, and then as a product, if you're thinking like that, I'm thinking कि चलो ठीक है, but then another company भी ना जो same product कुछ different variation में बेचेगा, so there is this fear कि लोग हमारे clients migrate ना कर जाए दूसरे कंपनी में, then ये तो करेक्ट। चलता रहेगा तो, अरे ऐसे तो चलता रहेगा. यही कस्टमर एक्सपीरियंस को कितना अब ज्यादा कम से कम दिमाग लगाना पड़े कस्टमर को, किस कम से कम उसको, मतलब उसको इतना कंफर्टेबल कर दो एंड ऑफ द डे कि उसको कुछ भी ना करना पड़े। बाय मतलब बहुत कम डिसीजन उसको लेनी पड़े। मतलब अगर जोमेटो का एग्जांपल हम्म देख लो, जोमेटो का कस्टमर हम्म एक्सपीरियंस अभी ऐसा हो गया है कि अगर मुझे कुछ हम्म ऑर्डर करना है, जस्ट ऑर्डर, और वो हम्म ओटीपी वगैरह सब कुछ, वो स्क्रीन सब, वो सीवीवी नॉट रिक्वायर्ड, ओटीपी ऑटो हम्म फिल कर सब कुछ कर देगा वो मेरे लिए। हम्म मुझे बस एड्रेस सिलेक्ट करना था और खाना सिलेक्ट करना था बस। हम्म तो दे आर पैरानॉइड, उनको पता है कि आजकल कोई भी कुछ भी बना सकता है, मार्केट में ले जा सकता है। तो कंपनीज वांट टू लाइक कंटिन्यूअसली इवॉल्व सो मच कि मतलब कंपटीशन का कोई सवाल ही ना है। but और इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मोर एंड मोर मनी। but the point is ultimately it's still dumbing all of us down because जितने भी लोग से बात करो एवरीबॉडी कीप सेइंग कुछ तो याद ही नहीं रहता है आजकल, भूल भूल जा रहे, इंक्लूडिंग मी, लाइक आई कांट रिमेम्बर द नेम ऑफ बुक्स आई एम डिस्कसिंग इन क्लास एंड आई कीप टेलिंग ये ऑथर का नाम बट बुक याद नहीं है, बात करते करते आई कांट फाइंड वर्ड्स एंड इट्स बिकॉज दिमाग लगाना ही छोड़ दिए. आई डोंट नो एनी पासवर्ड ऑफ माइन, आई हैव टू चेक माय पासवर्ड मैनेजर ऑन माय फोन एंड माय लैपटॉप, उसमें सारा सेव किया हुआ है. सो द पॉइंट इज, are we not doing it to the detriment of not only our mind and memory but also
फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो, सारा सारा दिन लोग काम करते ही जा रहे। We have done a discussion on obesity and how this lifestyle is kind of pushing us towards it, ultimately leading to diseases, ultimately leading to breakdown of family relationships. जिसका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप तो कुछ बच रहा है कि नहीं भगवान ही जाने, बच्चों से देखा नहीं हो रहा है माँ बाप, where parents are also constantly working, child भी deprived है। So ठीक तो पूरा मतलब सोसाइटी का बेड़ा गर्क होके बैठे जा रहा है, and to whose benefit, where are we putting money? To that idiot Zuckerberg's pocket, जो हमारा टाइम और अटेंशन मोनेटाइज एंड मोनोपोलाइज कर रहा है। हाँ, Actually, to think of it from another perspective is also कि our brain is also working for efficiency, working towards efficiency. अगर ब्रेन को कहीं ना कहीं अगर उसको पता है, आई डोंट नो इफ द राइट वे टू एक्सप्रेस इट, बट उसको कहीं ना कहीं अगर पता है कि ये चीज मैं मुझे ज्यादा काम नहीं करना है, तो इट विल लेट इट गो। ये और जहां पे उसको लगना है दिमाग, वहां पे ही वो वर्क करेगा। बट ऑल्सो वी आर गेटिंग गोइंग डम्बर बाय डे। आई टोटली अग्री टू दैट पॉइंट। डू यू नॉट क्रिएटिविटी थिंक खत्म हो दैट? रही है। क्रिएटिविटी 100% खत्म हो रही है। लोग आजकल इतना इतना एआई डिपेंडेंट हो गए हैं, लोग आर्ट बेच रहे हैं। और ऐसे लोगों को, आई सॉ एन एग्जांपल ऑनलाइन जहाँ पे एक वेरी फेमस आर्टिस्ट हु सेल्स रिलीजियस पेंटिंग्स, एंड ही क्लेम्स कि उसने बनाया वो पेंटिंग्स। किसी ने ढूंढ निकाला कि ये एआई जनरेटेड है। कैसे? और लोग उसमें बेवकूफ बन भी रहे हैं। तो सोचो, कोई एक बंदा दिमाग लगाता है, वो देखता है सही से, तो ये सही से देखने की आदत ही छूट गई है। लाइक हमारा पिक्सल। अटेंशन स्पैन ही कम हो गया है कि हम लोग अच्छा ठीक है देख लिया, ओके, अच्छा लग गया, चलो ले लो। हम लोगों ने उसको ध्यान से परखना छोड़ दिया है। राइट? तो ये तो 100% एक साइड इफेक्ट है कि या आई मीन something like continuously speak on. अरे, do you not feel कि if you train your brain in a certain way, then things become second nature? तो अगर हम अपने आप को ट्रेन करना ही छोड़ दिए टू रीड समथिंग केयरफुली, टू लिसन केयरफुली, रिमेम्बर बचपन में वी वुड रिमेम्बर सो मेनी पीपल्स फोन नंबर्स, घर का लैंडलाइन नंबर, जिसका ग्रेट। ये वो फोन नंबर, मम्मी पापा फ्रेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ अपना छोड़ के और फिर 2 दिन का छोड़ के भी ढूंढ लो एंड वी कांट इवन रिमेम्बर नाउ। The point is, if we are not training our brain, if we are not like putting it to work, brain is not meant to be idle. Is it meant to be idle? You are not a neurosurgeon for any, but I'll still ask you. So if our brains are not meant to be idle, then why are these big companies making us lazy? कि हम अपना दिमाग छोड़ दिए। You are बिकॉज no suitor उनके for लिए this big सबसे company, but yeah, sorry. अग्री You are all I have got. अब बताओ। अग्रीड अग्रीड 100% अग्रीड। उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका अटेंशन, आपका टाइम। आप जितना ज्यादा उन एप्स पे अपना टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा उनको फायदा रहेगा, उतनी ज्यादा चीजें आपको बेच पाएंगे, उतना ज्यादा आपको ब्रेन वॉश कर पाएंगे फॉर कंज्यूमरिज्म, हम्म। कि ये भी हम्म। आपको चाहिए। ये देखो दुनिया में ये हो रहा है, लोग घूम रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग ये खरीद रहे हैं, लोग ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। राइट? सो आई सॉ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कैसे रिच बिकम रिचर बाय हम्म। सेलिंग यू स्टफ विच यू डोंट हम्म। नीड। हम्म। और उन चीजों को इन्फ्लेशन इतना इजीली अफेक्ट नहीं करता है, जैसे कि कपड़े हो गए, हम्म। कॉस्मेटिक्स हो गए। वो इन्फ्लेशन से इतने ज्यादा परसेंट उनके उनके प्राइसेस नहीं बढ़ती है, अनलेस कंपटीशन आ जाए। पर वही अगर आप घर वगैरह की बात कर लो, विच आर नीड्स, हम्म। वो हम्म। इन्फ्लेशन से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। हम्म। तो रिच वैसे रिचर होते हैं। तो अगेन, नॉट वांटिंग टू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, हम्म। इसके इम्प्लीकेशंस तो डेफिनेटली होने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक वो भी उससे भी अमीर लोग उससे भी पैसा बना ही लेंगे। तो अमीर लोग खुद who are super busy won't spend time on these kind of apps. Like I've ना seen ना। Scarlett Johansson's video, I've seen Amir Khan's video on Instagram, like talking क्या about बोला? Instagram basically, how Scarlett Johansson was saying कि I wasted 17 minutes of my time on Instagram, and everybody in the comment section went like, "What do you हम्म। mean you wasted 17 minutes?" Same thing Amir Khan was also saying, like, "This is not good for my brain. I just gave it away."
या तो ऐसी एग्जैक्टली। चीजें वो ध्यान से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड इसके रिpercussions या फिर इसके इम्प्लीकेशंस ये हो सकते हैं कि हम लोग दिमाग लगाना इतना कम कर चुके हैं, तो दिमाग तो आइडल होने के लिए, एज यू राइटली पुट, इज नॉट मेंट टू बी राइट। तो इससे दिखने वाली है बीमारियां, अल्जाइमर, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां होने वाली है आगे जाके लोगों को दिमाग से रिलेटेड। यूज नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल, मतलब आपकी जनरेशन या अगली जनरेशन इससे इम्पैक्ट हो जाएगी। बचपन हो से गई है, मोबाइल पकड़ा देते हो, हो गई, हो उनको खुद को दिमाग नहीं है, तो बच्चे भी जॉम्बी ही बनेंगे फिर, राइट। गई। थिंक अ लॉट ऑफ स्टफ। Yeah, I'm trying to imagine which is living with. which is actually happening actually. I uh, know, I see it all the time. Like all the yeah, time. I mean, I yeah, can't even express how intense everything. yeah. Children don't know how to express themselves. आजकल Hmm. बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, Hmm. ज्यादा But सॉरी। I'm saying only बच्चे चिड़चिड़े नहीं है, other people से बच्चे होते हैं. But yeah, Yeah, so that yeah, I don't know who you're talking about here, but yeah, people yeah. do get all this side effects of um brain rot content Uh, continuously being consumed. whenever you Screen. are saying me brain rot content, हमको तो समझ में ही नहीं आया वो क्या था उसमें. I have asked you to explain it to me, which kind of kills the joke. But sorry about that. But I can try to look for reason or something in that film. There is nothing. So brain rot content basically मतलब जिससे तुम्हारा दिमाग, तुम जहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम्हारा दिमाग उससे मतलब पूरी तरह से मतलब तुम अपने दिमाग को खराब कर रहे हो उस कंटेंट को Why? कंज्यूम करके। Why would I voluntarily kind of ruin my brain, which is the CPU of my यू विल body? नॉट वॉलेंटरीली डू इट, बट आई थिंक इट इज अडिक्टिव। तो कैसे कि अम, देखो, अगर तुम टिकटॉक का एग्जांपल लो, इंडिया में जब Yeah. टिकटॉक था, तो हु वर देयर मेजर ऑडियंस? दोज वर पीपल फ्रॉम Young people. टीयर 2 टीयर 3 cities, राइट, Hmm. फ्रॉम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स। क्यों? क्योंकि वो लोग दिन भर मेहनत करके स्लॉग करके आते थे, एंड Hmm. टिकटॉक यूज्ड टू बी देयर एस्केप। Hmm. व्हाट इज एस्केप? अब किसी के लिए भी एस्केप कुड मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, Yeah, कि yeah, yeah, वो yeah. कोई फनी चीजें देख रहा है या फिर कोई एक्सप्रेसिव चीजें देख रहा है जिससे उसको लग रहा है कि ये तो रिलेटेबल है। तो अभी उसी चीज को और ज्यादा वायरलिटी पॉइंट से सोचो। वायरल कौन सी Hmm. चीजें होती है जिसमें कुछ अटपटी सी चीजें हो रही है, जिसमें दिमाग नहीं लग रहा है किसी का, बट इट इज जस्ट अडिक्टिव समहाउ। जैसे बिग बॉस का एग्जांपल है, राइट, लोगों को झगड़ा कोई कर रहा है, वो देखने में बहुत मजा आता है। तुम उन लोगों को जज करोगे, बट द सेम थिंग यू मे ऑल्सो डू इफ यू आर वॉचिंग रील्स। बट तुम्हें वो समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम रील्स देख रहे हो, तुम अपने आप को उनसे थोड़ा बेहतर समझ लोगे क्योंकि हाँ, मैं तो इंस्टा पे रील्स देख रहा हूँ और मैं तो ट्रैवलिंग कंटेंट देख रहा हूँ। बट इफ यू रियली Hmm. ऑनेस्टली टेक अ क्लोजर लुक, यू आर ऑल्सो गिविंग योर ब्रेन दैट सेम डोपामिन Right. हिट्स, बट उसमें भी तुम कहीं अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो। उससे तुम्हारा दिमाग अल्टीमेटली, अपने ब्रेन को तुम कहीं ना Yeah. कहीं अच्छी चीजें फीड नहीं कर रहे हो, राइट। तो दैट इज ब्रेन रॉट फॉर मी। Now, but I have a friend who told me that Mustafa friend only watches brain dead content. And he says, "Hey, बिकॉज वो बच्चों this में is भी a एक well ट्रेंड होता placed, है ना अलग अलग। this is a well placed human being in a metropolis like Mumbai. And like from a very like, TikTok content वाले लोग, proper executive in a proper place. And he's like, boss, I only watch brain. एग्जैक्टली तो टिकटॉक वॉज एन एग्जाम्पल, बट अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति के लिए एस्केप इज द Hmm. इज द थिंग, राइट। कि उनको दिन भर काम करने के बाद दीज थिंग्स सीम लाइक एन एस्केप, पर ये एस्केप इतना बुरा एस्केप है कि दिस इज Ah, वर्स देन योर okay. I get एडिक्शन this. दैट पीपल यूज्ड टू हैव, राइट। हाँ, Yeah, yeah. लोग पहले सिगरेट दारू शायद हफ्ते में 2 बार पी लेते थे, अभी रोज दिन रात इंस्टाग्राम चला रहे हैं।
और Quite दिस literally. इज नॉट अ गंदी आदत जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे इसको तो दारू पीने की आदत है तो नॉट गुड फॉर देयर बॉडी, राइट? बट Public मोबाइल देखने shame. की आदत है, इसको कौन बोलेगा कि ये बुरा है इनके बॉडी के लिए? सब तो चला रहा है, सभी चला रहे हैं। हाँ बट वही तो बुरा, आई डेवलप ड्राई आई बिकॉज ऑफ मोबाइल देखते था, तो माय डॉक्टर टोल्ड मी नॉट टू यूज, स्टिल यूज, बट एनीवे, या कम करते हैं. Great thing. I mean, congratulations on 11 years into the business. I'm sure there will be 111 more. Though, if I'm any well-wisher, I would say, जल्दी जल्दी retire करो, finish this madness, get out of the maze, enjoy life, feel the grass, है ना? Touch आई grass, वांट टू टच द ग्रास, या। touch grass. Actually, touch grass, not the other kind, this kind. And little beneath your feet. Yeah. Great, great. Uh, but I keep, मतलब, जितना भी you try to persuade me about the advantages which automation can give, I was thinking, human element, how can you take it away? Human oversight, human instinct. Because this I forgot to say, there was this research which came out, the automated ये applications to a software company. एक आदमी apply कर रहा है, बार बार उसको reject हो गया. And then they found out that there was a glitch in the system which automatically rejected the applications without even reading whether it is going to be. So, I mean, as if I can do it, like I can say black people, not, I don't want black people. Like, who would know? What the internal base is. I don't want to say people from a certain region, or I don't know people. So, as if I could like अपना वेद धड़क, हम अपना prejudices को, I can put them at play and ग्रेट। दिस इज वेयर योर प्रोडक्ट्स केपीआईज किक इन। मतलब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके साथ ही साथ आप केपीआईज भी लेके आते हो कि इसमें एप्लीकेशन टू रिजेक्शन रेशियो कितना है, आप ये देख सकते हो। तो अगर एप्लीकेशन टू रिजेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विथ योर सिस्टम, राइट? तो उसको मॉनिटर करने के लिए शायद आप एक आध इंजीनियर को हायर कर लो, देखा था. rather than hiring so many HRs who would Yeah. reach out to people and scan their resumes manually। आपकी सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए एक इंजीनियर लेके आओ, खत्म। इंजीनियर क्या है, एचआर भी कर लेगा वो तो। देखा था. We just have 30 seconds here. So if this goes well, we can have another round where you can tell like, how you've gone from place to place and throughout your career. You started off as a young fellow in your 20s. Now you are this senior level data architect. Thank you so much. Architect, but sure, thank you so Sorry, much, sorry, thank you sorry. Nidhi, it's super nice talking today, Yeah, and thank you great. for letting me share my experience and thoughts and feelings. Thank you, Nidhi.